reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the larger structural issues. And I want to tell you that a couple of things. First of all, that doesn't include the tariffs that are already on, that are our tariffs, and it doesn't include tariffs on cars, steel, aluminum, things such as that, or tariffs that may be imposed on pharmaceuticals, because we want to bring the pharmaceutical businesses back to the United States, and they're already starting to come back now based on tariffs, because they don't want to pay 25, 50, or 100% tariffs, so they're moving them back to the United States. I spoke to Tim Cook this morning, and he's going to, I think, even up his numbers, $500 billion. He's going to be building a lot of plants in the United States for Apple, and we look forward to that. I really do look forward to that. But the talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. And the relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. But one of the biggest things that we're doing, and I don't know if people realize this, but we made a great deal with China, great trade deal, but it was a much bigger deal originally, and then they canceled it right in the last day. Some of you faces I remember were there when that happened. I remember you. And we had a deal where they opened up their country to trade with the United States. And they took that away at the last moment, and then I canceled the whole thing. And then 6 months later, we ended up doing a smaller deal, but it was a big deal. It was $50 billion worth of product that they were going to purchase from our farmers, et cetera. And we agreed to that. People thought it was 15 because they were doing 15. We made it 50 because I misunderstood the 15. I said, you got to get 50. Because when I asked, if you remember the story, when I asked, what are we doing with them? My Secretary of Agriculture at the time, Sonny Perdue, said, sir, it's about 15 billion and we're asking for 15. And I thought he said 50. So I said, so they came back with the deal at 15 and I said, nope. चलिए इस बीच आपको बता दें, ट्रंप का बड़ा दावा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हमने परमाणु संघर्ष रोका। ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने इस जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब कह रहे हैं, फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं कि दो परमाणु देशों के बीच में हमने सीज फायर करवाया, नहीं रोकते तो परमाणु युद्ध हो जाता। ट्रंप का बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। आपको बता दें, वो दावा कर रहे हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता था जिसे उन्होंने टलवाया है। हमने परमाणु संघर्ष रोका है, ये ट्रंप कह रहे हैं। सौरभ, देवेंद्र, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साफ साफ भाषा में आपके मन में जो सवाल उनके जवाब दे सकते हैं। ट्रंप साहब ने एक तो ये भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई थी उससे पहले उन्होंने ये दावा कर दिया था कि हमने सीज फायर करवा दिया है। देखिए, ट्रंप के दावों पर तो कोई यकीन नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ तो था। इनकी आदत है ग्रैंड स्टैंडिंग की, ये हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं। इन्होंने ऐसा ही रूस यूक्रेन की वॉर में किया। इन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा पहले। ये बड़े बड़े दावे करना, बोलना इनकी आदत में है, लेकिन कई बार वो वास्तविकता से अलग होता है और इस केस में भी वो अलग है। और देवेंद्र, आपको तो उसके पीछे की कहानी जो है बदस्तूर सिलसिलेवार ढंग से पता है कि किस तरह से पाकिस्तान पैनिक मोड में आया था जब हमने उसके उन ठिकानों को भी निशाना बनाया था जो उसके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं, कमांड सेंटर्स जो होते हैं, उसके बहुत करीब थे। तो वो डर गया था, वो पैनिक में आया था। हाँ बिल्कुल, और कुछ उनके इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे थे जो कि उसमें फैक्ट से थोड़े दूर ही थे वो, क्योंकि भारत की ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं थी और भारत ने तो बार बार ये किया कि हम सिर्फ मैसेज देना चाह रहे थे। लेकिन उनको ये समझ में आने लगा कि शायद भारत ने उनके जितने न्यूक्लियर सेंटर हैं उनको टारगेट पर कर लिया है, उसको हिट करेंगे, क्योंकि भारत ने जो शुरुआत कर दी थी वहां से उन्होंने मैसेज ले लिया। जी बोलिए। और उसके बाद तुरंत नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसको उसकी बैठक। देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं, फिर आप बताइएगा कि ट्रंप के दावों में कितना दम है। आमतौर पर झूठे ही होते हैं। Things happening. It's been a very strong week and a very strong weekend. Before we begin, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days.
On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. तो आप ये डोनाल्ड ट्रंप की जो बात सुन रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की अपने बात कहने का अपना तरीका है, बड़े कलरफुल तरीके से अपनी बात को कहते हैं, लेकिन बड़ी गंभीरता से आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि इन दोनों देशों के पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार हैं और हमारे कहने की वजह से हमने जब इनसे कहा कि सीज फायर कर दीजिए तो इन्होंने सीज फायर कर दिया। ये इनका दावा है। अब एक्चुअली इसके पीछे की जो कहानी है, अंदर की जो कहानी है, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने डर कर अमेरिका को फोन किया था। ये फैक्ट है, सच्चाई है। हमने जब उनके एयरबेसेस पर हमला किया और एक साथ 8 एयरबेस पर एक बार में हमला किया, तो इन्होंने डर कर फोन किया कि भारत नहीं रुक रहा है। और पाकिस्तान ने कहा कि भारत अब हम पर ब्रह्मोस मिसाइल मारेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि भारत का मिसाइल अटैक होने वाला है तब, और ये हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी वार कर सकता है। क्योंकि जो हमला किया था वो बहुत करीब था, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमंट बहुत करीब था, जहां पर जिस एयरबेस को हमने निशाना बनाया था, और उसके बाद से पाकिस्तान में पैनिक बटन एक तरह से दब गया था कि अगर ये एयरबेस जो इतना मल्टी लेयर सिक्योरिटी में रहता है, वहां तक अगर हमला हो सकता है तो फिर यहां क्यों नहीं। एक चीज बड़ी क्लियर कर देनी चाहिए हमको। आपको ट्रंप की बातों से ये लग रहा होगा कि ट्रंप ने कोई बीच बचाव किया, मध्यस्थता की और उसकी वजह से ये सीज फायर हो गया। पहले तो ये सीज फायर शब्द भारत ने इस्तेमाल किया ही नहीं है। हमने कहा एक सहमति है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि फिलहाल मिलिट्री कार्रवाई नहीं होगी। अब ये कोई मध्यस्थता की हो अमेरिका ने, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान डरकर अमेरिका के पास पहुंचा, पाकिस्तान भारत के हमलों से डरकर अमेरिका के पास पहुंचा, और अमेरिका ने हमको केवल ये बताया कि पाकिस्तान रुकना चाहता है, पाकिस्तान सीज फायर कर सकता है। और हमने पहले उसको ये कहा था अगर वो कार्रवाई करेगा तो हम बहुत जोर से जवाब देंगे। जब दूसरी बार हमारे पास कांटेक्ट किया गया अमेरिका की तरफ से और कहा गया कि ये सीज फायर ही हो सकता है, पाकिस्तान ऐसा चाहता है। पहले वो ये चाह रहे थे हमसे, इंडिया से, कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल दें जिससे पाकिस्तान सीज फायर करते हुए ऐसा ना लगे कि वो झुक गया है, वो डर गया है। हमने कहा हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अगर सीज फायर चाहता है, रुकना चाहता है, वो चाहता है हम कार्रवाई ना करें, तो पहले तो उसको अपनी तरफ से जो कुछ भी वो कर रहा है बंद करना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा। आप हमें ना बताएं जी। ये मध्यस्थता वाली बात नहीं है, क्लियर है, क्लैरिटी है। अमेरिका को हमने कहा आपसे नहीं सुनना हमें कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, हमें पाकिस्तान से सुनना है। उससे कहिए, उसको अगर चाहिए हमसे कहे, सीधे कहे जी। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। बिल्कुल, और पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी के जो शब्द थे जो आपको लगातार दिख रहे हैं कि मोदी ने साफ कह दिया था कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलाएंगे। तो पाकिस्तान खुद झुका, घुटने पर आया, पैनिक बटन पाकिस्तान के अंदर दबा। पाकिस्तान को जो अपना इंटर इनपुट मिला, भले ही वो गलत मिला, लेकिन उससे वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया था कि कहीं उसके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पर अगला निशाना ना हो। हालांकि भारत की कतई दूर दूर तक पॉलिसी या मंशा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैनिक मोड में था और वो अपील करने के लिए गया था
अमेरिका के पास कि आप यहां पर हम सीजफायर करना चाहते हैं, हम इसको यहीं रोकना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। देवेंद्र, आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब तो देश भी जानेगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि जो ट्रंप के जो दावे हैं उसके पीछे की असली स्टोरी क्या है, हुआ क्या था, पैनिक कैसे हुआ था, ये न्यूक्लियर शब्द कहां से आया था, एक सिलसिलेवार ढंग से अगर आप समझा सकें। देखिए, थोड़ा सा पहलगाम हमले के बाद जाएं, पहलगाम हमले के 4-5 दिनों के बाद, तो अमेरिका की एक कंपनी का उस बैकग्राउंड से ही समझा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ट्रंप की भी थोड़ी मनोदशा समझ में आएगी कि उनकी वहाँ अमेरिका की एक कंपनी का बिटकॉइन को लेकर पाकिस्तान में एक बड़ा करार होता है। उस कंपनी के 60% तकरीबन शेयर ट्रंप उनके परिवार के लोगों के पास है। उसके बाद ट्रंप का थोड़ा सा इंक्लिनेशन, वो जो झुकाव जो होता है, वो थोड़ा बहुत सिंपैथी पाकिस्तान को लेके आने लगा था। बेसिकली वो एक बिजनेस मैंडेट व्यक्ति हैं, तो बिजनेसमैन ही हैं, तो उस हिसाब से उनको समझा जा सकता है। बाद में ऑपरेशन सिंदूर भारत को करना था, भारत ने क्लियर कट शब्दों में बता दिया था, और तब अमेरिका का एक जिम्मेदाराना और बेहतर बयान भी था, भारत के लाइन पे ही था कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई किसी रीजनल कन्फ्लिक्ट में नहीं बदल जानी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत तो उसी लाइन पे था ही कि हमें सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और वो दुनिया के सभी देशों को बताया जा रहा था, इनको भी बताया गया। बाद में जब भारत के रिटेलिएशन के बाद पाकिस्तान के अंदर ये दहशत हुई और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलने लगा कि न्यूक्लियर धमकी जो वो देते हैं भारत अपने ब्रह्मोस के द्वारा वैसे सारे सेंटर को हिट करने वाला है, तो आनन फानन में ये मैसेज एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी, उसके मार्फत ये न्यूज़ प्लांट कराया गया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की एक बैठक पाकिस्तान बुला रहा है जो कि न्यूक्लियर पावर को मॉनिटर करता है, और वहाँ से फिर ये अमेरिका के अंदर मैसेज, फिर अमेरिका का भारत को फ़ोन, प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना। वो पहले ही बात तो कि जब बताया गया कि पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है और पाकिस्तान भी ये कार्रवाई कुछ कर सकता है, तो उस कंडीशन में भारतीय प्रधानमंत्री का एकदम चुप रहना और ये कहना कि पाकिस्तान जो कुछ भी करेगा उसका बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और इस मैसेज के बाद अमेरिका को एकदम से समझ में आ गया कि अब कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान को ये कहा जाए, जिसके लिए वो चाह ही रहा है कि सीधे फ़ोन करे। और भारत फिर उसके बाद अमेरिका के द्वारा ये भी मैसेज दिया गया कि अगर DGMO का कॉल वहाँ से आए तो भारत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। भारत की क्या नीति है, भारत की तरफ से ये बताया गया कि 7 मई को जो हमने कहा था हम वही हैं, वो गोली चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे तो हम नहीं चलाएंगे, आतंकवादियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और इस पूरे बैकग्राउंड को फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अपने चेस्ट थम्पिंग के लिए वो जाने ही जाते हैं, वो इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी भारत न्यूक्लियर पावर को लेके बेहद जिम्मेदार देश है और पाकिस्तान को उसने सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही दिया है। अभी भी भारत ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर वो सिर्फ मैसेजिंग वाली कार्रवाई है, कोई ठोस बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से नहीं की, अन्यथा तो एक पूरी रात में पाकिस्तान का पूरा एयर सिस्टम हमेशा के लिए तबाह हो जाता।